Hello and welcome back everyone to your own channel, that is Ayush PT Elixir. As we know that we already have been putting a lot of videos related to the exam and some of the videos that are very important for you, just like the repeat sentences one. So you can go through these videos once and check it out. But the topic for today's video is about the reading blanks, how to do them without the extra efforts. Obviously we have put some videos related to that, but आज की इस वीडियो में मैं आपको और डीपली थोड़ा सा बताने वाला हूँ 3-4 क्वेश्चंस को सोल्व करके कि कैसे आप अपने रीडिंग के ब्लैंक्स में मार्क्स ले सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, और वो भी 2 मिनट से पहले. सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड एनी अपडेट्स अबाउट दैट. And secondly, I would like everyone to please like this video, and who are already subscribed, please share this video with your mates, guys. Right? So I just follow a simple technique for my reading blanks that, as you know, that I've already put. It's the GST technique, like the grammar that we basically miss it out because most of the trainers वो यही कहते हैं कि ग्रामर का कोई यूज है ही नहीं. लेट मी टेल यू, इंग्लिश जो है दो ही तरीके से सीखी जा सकती है, या तो आपकी इन्वायरमेंट के थ्रू, और वो इन्वायरमेंट उस भिखारी का होगा, उस बैगर का होगा जो ऑलरेडी यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में रह रहा है बचपन से, या तो उसको इंग्लिश आती होगी, या फिर जिसको बेसिक रूल्स की नॉलेज होगी, उसके लिए ही पॉसिबल है. एंड द लास्ट वन, इट्स योर तुक्का. So I would be going with that rule. So fasten your seat belts and be with the pen and paper to note down any kind of key points that you need in between. So let's start this with a basic question that we may get in the real exam as well, which is like this one, productivity. It is like the most repeated question as well. Many students has got this, this particular question in their exam. So you can also cram the answers, but I would not suggest you to cram anyhow. Try to go with your instincts, guys. So firstly what I can see, like, let's start this question with 2 minutes technique, how I'm going to do it. Okay, so technology and flexible work dash have had a significant impact. So it's a plural verb, so it should be a plural noun. Let me go with the plural noun. Deals, practices, both of them. Technology and flexible work deals, practices have had a significant impact. Yes, it can be practices. सो बिकॉज प्लूरल का नाउन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की वर्ब आ रही है. इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इट सीम्स द डैश हैज शिफ्टेड, अगेन एन आर्टिकल एंड इट्स अ नाउन बिकॉज वी नो दैट इट्स अ वर्ब. सो सिंगुलर की वर्ब दी गई है तो यहाँ पर सिंगुलर का ही नाउन आने के चांसेस ज्यादा है, और सिंगुलर का नाउन देखते हैं. द फोकस हैज शिफ्टेड, डील्स कैन नॉट बी देयर, वे हैज शिफ्टेड, सेलिंग it can be a verb as well, output has shifted, extent no. The focus has shifted, we can say the focus has shifted from managing employees in the workplace to monitoring their total dash no matter where they choose to work. So they there, whenever you see this possessive pronoun, so हमेशा वहां पर noun आने वाला है. their total मॉनिटर करेंगे आउटपुट को. ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रामर लगाना है क्योंकि यहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन था, सेंस लगाना है, फिर उसके बाद तुक्का आपका 100% ठीक हो सकता है. वेदर दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट, ये तो कोलोकेशन ही हो गई. सो व्हेनेवर यू आर डन विद दैट, 1 मिनट 17 सेकंड में हमारा क्वेश्चन हो गया है. आपका रिमेनिंग टाइम आप उसको प्रूफ रीड करने में लगा सकते हैं, एंड प्रूफ रीडिंग इज मस्ट इन केस ऑफ एवरी टास्क. So technology and flexible work practices have had a significant impact on today's busy companies in terms of productivity. Seems that the focus has shifted. So अगर कोई वर्ड बचा है तो आप लगाकर देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसमें आ सकता है, अदरवाइज मुझे बेस्ट यही लग रहा है. Monitoring their total output no matter where they choose to work. Whether this trend will continue depends to some extent on how well it works for everyone concerned. So I guess it should be correct. Let me submit and check it out. Yes, it's correct. So basically what we have to do is, like, we just have to focus on our grammar first. Elephants have a very dash communication system. So phrase को देखते हैं. phrase यहाँ पर a very dash communication system. It's a complete phrase, क्योंकि phrase आपका 2 या 3 words को मिलकर बना होता है जो sense देता है बट एक्चुअली में sentence नहीं होता. तो यहाँ पर a very very हमेशा adjectives को चेक करने के लिए लगाया जाता है. very distant, very variety, very family, very ranging, very apart, very complex. Yes, a very complex communication system which helps them maintain their close dash bonds. बॉन्ड्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर फैमिली मुझे एक ऑप्शन नजर आती है. क्लोज फैमिली बॉन्ड्स वी कैन से when they are near each other they use verbal and visual signals to express a wide dash of emotions. अगेन आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पर preposition है, या ध्यान रखना ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह मिलने वाला है, तो नाउन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और यहाँ पर सिंगुलर का नाउन आएगा. आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें मुझे इमीडिएटली वीडियो को पॉज करके कि सिंगुलर का नाउन आना चाहिए या प्लूरल का. सो आई होप आपने कर दिया होगा. तो अ वाइड डैश ऑफ इमोशंस, अ वाइड ऑब्वियसली वेराइटी ऑफ इमोशंस, काफी सारी वेराइटी ऑफ इमोशंस की होगी. एज दे मूव फर्दर डैश दे यूज लेस कॉमन रंबलिंग डैश दैट कैन बी हर्ड. तो साउंड्स, और वैसे भी प्लूरल का नाउन आने वाला है जिसको सुना जा सकता है. तो दे मूव फर्दर डिस्टेंट, रेंजिंग अपार्ट, दे मूव फर्दर अपार्ट. So let's check it out. Elephants have a very complex communication system which helps them maintain their close family bonds. When they are near each other, they use verbal and visual signals to express a wide variety of emotions. As they move further apart, they use less common rumbling sounds that can be heard over 2 kilometers away. So it looks great. Let me submit and check it out. Okay. So I guess this ID has been logged out.
Let me go with that question again, guys. Just wait, let me use another ID because this is for the student that I'm using for the moment. Let's go with this one. So guys, you can also purchase these like AppUni IDs. These are most trustworthy as compared to all. मुझे किसी के भी AI पर like इतना trust नहीं है जितना AppUni के AI पर trust है, क्योंकि these are like you know very good as compared to others, and they are closely related to, you can say, the Pearson smoke test. So I guess like elephant was something there. Let me submit and check it out. Okay, so it's practice, yeah. And guys, you can also go and check these videos out. There are a lot of videos related to your content, your exam. So I would request everyone to please put a like on those videos as well. So what we did is like a very complex communication system. They're close family bonds, yeah, to express a wide variety of emotions. They further move apart, rumbling sounds. So that's what I have done. Let me submit and check it out. Yes, it's correct. So basically like what technique I am using right now, I'm going to tell you in the next 2 blanks. So अभी आपको जो भी टेक्निक पता लगने वाली है, प्लीज अपने नोटपैड में या अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें, so that you can get to know. It's already done. Okay. Employers often offer. See, employers is a plural का subject, तो इसकी verb जो हो गई offer, यहाँ पर s नहीं आएगा. याद रखना है, जब subject में s होता है तो verb में s नहीं आता है. Employers often offer employees perks in addition to cash wages. Always try to get the meaning of the sentence as well. मतलब meaning in the sense कि positive sense में चल रहा है या negative में चल रहा है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है. But I can say कि आप direct यहाँ पर भी जा सकते हैं blank पर. That is one of the techniques. वो work करती है केवल उनके लिए जिनकी sense better है. But मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन ऑफर, एम्प्लॉयज ऑफर करते हैं पर्क्स को, तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, मेंबरशिप ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी पेंशन समथिंग, तो इट शुड बी अ नाउन. ऑलवेज रिमेंबर, आपका कोई भी सेंटेंस होता है जो उसका स्ट्रक्चर जो देखा जाता है, दैट इज बेसिकली व्हाट SVO, जिसमें सब्जेक्ट भी आपका लाइक 90% नाउन ही होगा और वर्ब भी आपकी 90% लाइक आई मीन ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी आपका 90% नाउन होने के ही चांसेस ज्यादा होते हैं. So let me check it out now. Verb, then verb can be like ending with ed, ded, ing, s or es. So these are the basic forms. And object, it's always a noun as well. Like noun is the name of something. So nouns के बिना कोई भी sentence नहीं बनता, ध्यान रखना है. तो यहाँ पर भी noun ही आना चाहिए, और noun को check करने का सबसे basic way है like प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस तो होते ही हैं, आप गुड और बैड लगाकर चेक कीजिए. जैसे कंसिडरेशन, गुड कंसिडरेशन, बैड कंसिडरेशन, तो यू कैन से लाइक इट्स अ नाउन एज वेल. अवॉइड करना, इट्स अ वर्ब. एलिगेशन इज अ नाउन. स्कीम इज अ नाउन. यस, पेंशन स्कीम कैन बी देयर क्योंकि सेंस भी दे रहा है. ट्रीटमेंट इंक्लूड्स इज अ वर्ब. ट्रीटमेंट इज अ नाउन. अलाउज इज अ वर्ब. एंश्योर इज अ वर्ब. सो यहाँ पर नाउन हमारे पास कंसिडरेशन, एलिगेशन, ट्रीटमेंट और स्कीम था, जिसमें पेंशन के साथ स्कीम ज्यादा बेटर लग रहा है. इफ दे डू, अब यहां पर ध्यान रखने की, दे किसकी बात कर रहा है? एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा है. वो एम्प्लॉयर्स ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज को कुछ पर्क्स, मतलब एडिशनल कैश वेजेस देते हैं उनको. फॉर एग्जांपल, मेंबरशिप ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी पेंशन स्कीम. इफ दे डू, दे मस्ट डैश दैट. सो मस्ट के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इट्स बेसिकली अ मोडाल और मोडाल्स आर ऑलवेज कैरिंग द फर्स्ट फॉर्म. सो दे मस्ट डैश दैट दे आर इन फेयर इन प्रोवाइडिंग दीज बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू डैश डिस्क्रिमिनेशन. सो दे मस्ट कंफर्म और समथिंग. फर्स्ट फॉर्म इज अवॉइड, नो. Includes and allows both are s or es, so they cannot be there क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. Ensure, they must ensure that. अब that जो आपका काम करता है वो कंजंक्शन का काम करता है, और कंजंक्शन हमेशा ध्यान रखना नया सेंटेंस को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें नया सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा दे आर फेयर इन प्रोवाइडिंग दीज बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू डैश डिस्क्रिमिनेशन. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म. अवॉइड, यस, और ओनली अवॉइड ही है. देखिए ग्रामर से ही फेल हो जा रहे हैं, मतलब वहां पर सेंस और तुक्के की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप ग्रामर पर जाएं क्योंकि ग्रामर बहुत जरूरी है गाइस. फॉर इंस्टेंस, अब देखिए इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर यूज किया जाता है, और इंस्टेंस तब दिया जाता है जब आपको ऑलरेडी बात हो चुकी हो. तो आप रीऑर्डर पैराग्राफ में ऐसी कुछ टेक्निक्स को ध्यान रख सकते हैं कि दे आ चुका है तो मतलब ऑलरेडी बात हो गई है, फॉर इंस्टेंस आ चुका है तो ऑलरेडी बात हो चुकी है. हालांकि मैं रीऑर्डर के लिए अलग से वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं बहुत जल्दी, बट आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ वीडियो रिलेटेड टू वन रीऑर्डर पैराग्राफ. यू कैन चेक इट आउट. इफ एन एम्प्लॉयर डैश एन एंटाइटलमेंट. अब देखिए, अब यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जिसमें उसका सब्जेक्ट दिया गया वो एम्प्लॉयर है, एन एम्प्लॉयर. अब आपको पता है सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो यहां पर सिंगुलर की वर्ब आनी चाहिए. तो क्योंकि यहां से बट से नया सेंटेंस आ गया और बट के बाद पिछले सेंटेंस की वर्ब नहीं आ सकती, और यहां पर कोई वर्ब आई ही नहीं है. दे ऑल आर नाउन, लाइक एन एंटाइटलमेंट, लो इंटरेस्ट, ले, लोन्स, मेल, सभी नाउन है. तो सिंगुलर की वर्ब मतलब एस और एस वाली, इंक्लूड्स और अलाउज. So if an employer includes an entitlement or allows, it can be allows, क्योंकि एम्प्लॉयर जो जॉब देने वाला होता है तो वो अलाउ कर सकता है सेंस के अकॉर्डिंग. तुक्का आपका फिर भी सही होगा, मतलब आएगा इन दोनों में से ही, ध्यान रखेंगे. अगर वो नहीं हुआ तो ये आंसर होगा, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए. एन एंटाइटलमेंट टू लो इंटरेस्ट लोन्स इन मेल बट नॉट फीमेल.
एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखिए जहां पर भी ये अपोस्ट्रोफी नजर आता है उसके बाद अगर ब्लैंक दिया हो तो आपको ध्यान रखना हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, और वो सिंगुलर का होगा या प्लूरल का वो डिपेंड करता है उसके आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल नहीं दिया है, ए और एन नहीं दिया है तो प्लूरल का ही होगा। द के साथ दोनों आ सकते हैं, द फीमेल इंप्लॉइज, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं द फीमेल इंप्लॉइज, ये एक फ्रेज भी है, आर्टिकल के बाद नाउन भी आ रहा है, फीमेल उसका एडजेक्टिव बन जाएगा। कुड टेक द एम्प्लॉयर टू कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग, सो अनइक्वल इट्स एन एडजेक्टिव, एंड यहां पर नाउन आना चाहिए। कंसिडरेशन इंक्लूड्स द वर्ब एलिगेशन ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट, यस, क्योंकि एलिगेशन तो कोर्ट में चला गया तो ऑलरेडी हो ही जाता है। एम्प्लॉयर टू द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट, अगर उसको ट्रीट अच्छे से नहीं किया गया, क्योंकि ट्रीट एक वर्ब है, ट्रीटमेंट एक नाउन है, तो आई एम श्योर अबाउट दिस आंसर, बट लेट्स चेक इट आउट। एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन ऑफर एम्प्लॉयज पर्क्स इन एडिशन टू कैश वेजेस, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी पेंशन स्कीम. If they do, they must ensure that they are fair in providing these benefits in order to avoid discrimination. For instance, if an employer allows an entitlement, includes, it suits best. Now अब सेंस के अकॉर्डिंग मुझे includes बढ़िया लग रहा है, includes an entitlement to low interest loans in male but not female employees contract. मतलब अगर वो low interest include करता है मेल्स के केस में बट फीमेल में नहीं कर सकती, तो फीमेल एम्प्लॉयर को कोर्ट में लेकर जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट. सो आई थिंक इट शुड बी करेक्ट, लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट. बट अगर आपको 4 में से 3 या 5 में से 4 भी मिल रहे हैं तो गाइस यू आर गुड टू गो, बिकॉज आवर एम इज नॉट टू अचीव 90 बट एटलीस्ट वी हैव टू approach till 90. So let's do the last question for this session and we'll do the next in another video. So this exciting new MA in creative writing is designed, see is designed जो verb है वो MA तक के लिए है, मतलब creative writing की verb नहीं है. This exciting new MA is designed for graduates. Creative writing is not designed, the designed about what, the MA, new MA is designed for those graduates who, याद रखना that, who और which, ये 3 कंजंक्शन का काम करती है बीच में, जिससे नया सेंटेंस स्टार्ट होने का चांसेस ज्यादा होते हैं. सो who wish to examine and expand their work through workshops, seminars and dash tutorials, students will discover new writing strategies and refine their writing. एंड देखिए यहाँ पर वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ट्यूटोरियल्स आ चुका है, तो ऑलरेडी यहाँ पर नाउन्स है हमारे पास, तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा, नाउन को हमेशा एडजेक्टिव फॉलो करता है और एडजेक्टिव को वेरी लगाकर चेक करते हैं. सिंगल ट्यूटोरियल्स वी कैन से अंडरस्टैंडिंग इज अ वर्ब, फील्ड इज अ नाउन. इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स, यस, बिकॉज स्टूडेंट्स की बात करें, ऑफर्स वर्ब है. नेसेसरी ट्यूटोरियल्स, इट कैन बी वांटेड नाउ. So I guess so, like through workshops, seminars and individual tutorials suits best. भी individual tutorials अगर लेते हैं तो students वो discover करेंगे नई writing strategy and refine करेंगे अपनी writing को. The course dash students the practical expertise. देखिए again subject article फिर noun, उसकी verb यहाँ पर missing है. The course, अब singular का इधर s नहीं आ रहा है, अगर पिछले वाला sentence present में चल रहा है जो कि चल ही रहा है, is designed, ये फ्यूचर में आ रहा है देखिए. तो the course dash students the practical expertise needed for researching and structuring texts. So it should be a verb with s or es, I guess. Offers, yes, एक ही दिया गया था. कोर्स ऑफर्स, और कोलोकेशन भी है, ये ग्रामर के बाद सेंस लगाकर चेक कीजिए. ऑफर्स स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज नीडेड फॉर रिसर्चिंग एंड स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट्स एंड डैश ट्रेडिशंस एंड जेनर्स. एंड ऑब्वियसली याद रखना कोमा के बाद अगर वर्ब आ रही है मिसिंग तो आईएनजी में ज्यादा आती है, और अभी अंडरस्टैंडिंग की बात ही चल रही है क्योंकि ये टेक्चरिंग researching and structuring texts and understanding traditions and genres as well as the critical and creative proficiencies dash to develop a career. तो प्रोफिशिएंसी इज अ नाउन, तो नाउन तो नहीं आएगा यहाँ पर. अगर आपको यहाँ पर वर्ब दी गई है उसके साथ पहले प्रेपोजिशन भी है तो यहाँ भी वर्ब आने के चांसेस हैं, बट एडजेक्टिव भी हो सकता है. लाइन को पढ़ते हैं, कई बार आपको ग्रामर से ना सेंस आए तो आप सेंस डायरेक्टली लगा सकते हैं. ऑफर्स करते हैं वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज जो जरूरी होती है रिसर्च के लिए और स्ट्रक्चरिंग टेक्स्ट के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडिशंस और जेनर्स को, एज वेल एज द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव प्रोफिशिएंसीज नेसेसरी, जो जरूरी है, नेसेसरी टू डेवलप अ करियर इन क्रिएटिव राइटिंग और इन अ रिलेटेड डैश. अब ऑब्वियसली नाउन सिंगुलर का एक ही बचा है, सिंगल इज एन एडजेक्टिव, वांटेड इज आल्सो अ वर्ब, आर्टिकल दिया हुआ है, वैसे भी लास्ट में नाउन आता है और सिंगुलर का नाउन ही आएगा. सो इन अ रिलेटेड फील्ड, लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज इट आउट. This exciting new MA in creative writing is designed for graduates who wish to examine and expand their work through workshops, seminars and individual tutorials. कई बार अगर आपको आंसर लग रहा है कि कुछ और आ सकता है तो आप नीचे लगाकर देख सकते हैं जो बचे हुए आंसर. सिंगल ट्यूटोरियल्स, वांटेड ट्यूटोरियल्स doesn't give me any sense. So individual tutorials, students will discover new writing strategies and refine their writing. Their course offers students the practical expertise needed for researching and structuring text. जो कोर्स है वो ऑफर करता है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज जो जरूरी होती है रिसर्च करने के लिए और स्ट्रक्चर करने के लिए टेक्स्ट को, और अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडिशंस और जेनर्स को, एज वेल एज जो क्रिटिकल और क्रिएटिव प्रोफिशिएंसीज जरूरी है डेवलप करने के लिए एक करियर क्रिएटिव राइटिंग में या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में. तो आई गेस इट शुड बी करेक्ट. लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट. Yes guys, it is also correct. So congratulations, you have already successfully done 4 questions without any problems with the grammar rule. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ठीक होता हूँ, but sometimes I may be wrong as well. But 90% I will try to get maximum scores out of them, like 4 out of 5, 3 out of 4, 5 out of 6 at least. So
right now, like I would say these are the basic tips that I can provide you. But if you really need any kind of class, or if you want to clear up your exam, go and subscribe to this channel first and watch these videos that I've already uploaded on that, so that you can get some ideas about that, what kind of content you will see. And apart from that, you can also see some tricks that are related to my mock tests. I've already uploaded some of the real mock tests from AP Uni only, and how did I achieve my 82 score in the real exam, online strategy is working or not. So please go ahead and have a look on them, and please like do not forget to share this video with your mates as well, guys. And one more thing that I would like to say over here, that the grammar tips for you are as follows. Just kindly check these rules and note them down in your notebook. अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, I am there for you. You can call on this number that is given to you, 8572067589, and I am also there on Instagram. You can follow me on there, like Ayush PT Elixir. आपको वहां पर भी short videos काफी मिल जाएंगी. It can help you out, guys. So thank you so much for being in this video and have a good day. Just have your grammar tips now.